Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where the task today is to make sure that the chapter of dissolution is understood by you. Okay. इन द पास्ट टू लेक्चर्स, पिछले दो लेक्चर्स में जो डिसोल्यूशन के पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था, उसका मतलब क्या है और डिसोल्यूशन का थॉट प्रोसेस क्या है, कि एक दुकान कम्प्लीटली बंद हो रहा है, जो पार्टनर्स चलाया करते थे. रीजंस अलग अलग हो सकते हैं. कभी कभी रीजंस उनके बीच का मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, या कभी कभी रीजंस उनके कंट्रोल के बाहर का होता है. आपको इस चैप्टर में समझाया क्या गया था? देखिए, ये चैप्टर में अगर दुकान बंद होना है तो दुकान के अंदर दो चीज़ें होती है, एसेट और लाइबिलिटी. उन चीज़ों को ऐसे ही रखा नहीं जा सकता कि छोड़ दो, शटर बंद करो, चलो यहाँ से निकलो. एब्सोल्युटली नॉट. आपको एसेट्स के बारे में कुछ ना कुछ करना है और आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ करना है. ओके, एसेट के बारे में मैं ये काफ़ी स्पष्ट रीति से आपको बता देता हूँ. फर्नीचर आपका एसेट है, मोटर कार आपका एसेट है, कंप्यूटर लैपटॉप आपका एसेट है, ये एसेट है. अगर आप इन चीज़ों के बारे में कुछ ना करो, इट्स ओके, कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा. क्यों? अगर कोई पूछेगा, अरे तेरे पास लैपटॉप था, तूने वो लैपटॉप का क्या किया? अरे आपके पास फर्नीचर बढ़िया था, आपका जो डाइनिंग टेबल था, आपका जो अलमारी था, जो कबर्ड था, जो कैबिनेट था, जो मशीन था, काफ़ी बढ़िया था, आपने उसका क्या किया? देखिए, आप उनको मुंह पे जवाब दे सकते हो. तुझको क्या? मेरा था. तुझको क्या? आई रिपीट माई सेल्फ. ऐसा रवैया, एटीट्यूड आप दिखा सकते हो, क्योंकि वो आपके एसेट के बारे में आपसे सवाल कर रहे हैं. बट द मोमेंट वो आपके लाइबिलिटी के बारे में आपसे सवाल करे, अरे तुझे वो जो चाचा थे ना, उसको कुछ 10 लाख देना था, दिया कि नहीं? अरे वो जो बैंक वाला आया था, उसे तुझे 5 लाख देना था, दिया कि नहीं? आपको शर्म आएगी. क्यों शर्म आएगी? बिकॉज नाउ ही इज टॉकिंग और शी इज टॉकिंग अबाउट योर लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज के बारे में आप धौस नहीं जमा सकते. तो लाइबिलिटीज को आपको कुछ भी करके पे करना है. बैंक लोन है, क्रेडिटर है, कोई खर्चा पेंडिंग बाकी है, पे पे पे. बट पे करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? एसेट से आएगा. इसके लिए ये जो ऊपर है ना, लाइबिलिटीज भर दे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट देन उसको शुरू करने के लिए हमको स्टेप 1 करना पड़ता है, जो है एसेट्स को बेच दो.
नाउ नॉर्मली एक डिसोल्यूशन में जो क्वेश्चन होता है बराबर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट लेट मी गिव यू एन आइडिया कि ये जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 3 हिस्से होंगे, या जो सॉल्यूशन है हम उसे 3 हिस्से में सॉल्व करेंगे। आज और आने वाले अनेकों लेक्चर्स तक हम सिंपल डिसोल्यूशन कर रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू, हम नहीं जा रहे हैं डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन में, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। मतलब आपको समझना है कि ये सिंपल डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट का क्या किरदार है, कैश बैंक अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने फाइनल अकाउंट्स में इसे अनगिनत बार आपको सिखा दिया है। पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड, डोंट वरी, आज के ही समय में ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट रेडी रखना है। फॉर्मेट कैसे रेडी रखना है, थोड़ा देर आप रुक जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज का लेक्चर है, क्योंकि डिसोल्यूशन का जो सॉल्यूशन होता है वो 5 मिनट चुटकी बजा के नहीं होता, टाइम जाता है। अच्छा, मतलब कितना टाइम? करीबन 30 मिनट तो जाते ही है नॉर्मली। मैं आज के लेक्चर में फर्स्ट सम फुल नहीं सॉल्व करूंगा। हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम बता दिया कि मेरा एज ए टीचर ये सोचना है कि जो आपको या बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वो एक साथ में पूरा सॉल्यूशन हाँ करना है, बट टुकड़े टुकड़े में, स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप मेरे पीछे देखो, देयर इज स्टेप 1 जो प्लीज याद रखिए आज हम सॉल्व करेंगे। 2 प्रॉब्लम्स के अंदर हम अलग अलग प्रॉब्लम लेंगे, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आज यहाँ पे लिया है। फिर अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टेप 2 सॉल्व करेंगे। आई रिपीट, सॉल्व एडजस्टमेंट्स करके, एंड जब उसके बाद के लेक्चर में वही 2 प्रॉब्लम हम 3, 4, 5, 6 जो एक साथ में सॉल्व हो सकते हैं। तो आई रिपीट, टुडे प्लीज नोट द प्रॉब्लम विल बी इनकम्प्लीट, दैट्स फाइन, क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसे कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद के एपिसोड में उसका मैं खत्म कर दूंगा। सो टुडे एंड नेक्स्ट are going to be 2 same problems. We are going to continue solving it for the next 2 lectures because I want to make sure कि ये जो steps है ये आपके दिमाग में बराबर से फिट हो गया है। So today हम step 1 कर रहे हैं, आपको कुछ बाहर नहीं करना। आपको हाँ क्या लिखा है सर ने step 1 में? ट्रांसफर CRP। ऑब्वियसली आपका सवाल रहेगा अब ये CRP क्या है? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, ये किधर आएगा? आज के क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूं और सबके मैं आपको रीजंस भी बोल लूंगा। ट्रांसफर कैश ऑफ बैंक टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये भी दिखा दूंगा। ट्रांसफर रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिमेनिंग का मतलब क्या है, टू द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का जो मतलब है सबका सहारा रियलाइजेशन हमारा, वो भी बता दूंगा। एंड इफ पार्टनर हैज गिवन लोन देन प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। तो ये जो 1, 2, 3, 4 है स्टेप 1 के अंदर ABCD, इसका मतलब क्या है? बिकॉज इन द एंटायर चैप्टर आप कोई भी टाइप का सम करो, स्टेप 1 क्योंकि वो है स्टेप 1 सॉल्व तो करना ही है ना, एंड अगर उसके अंदर ना गड़बड़ हो तो ही स्टेप 2 करेक्ट होगा और तो ही स्टेप 3, 4, 5 जो भी है इसके आगे करेक्ट होने का अनुमान है। स्टेप 1 के अंदर एक गलती करोगे, एक गलती, तो ऑटोमेटिकली आगे के स्टेप्स में आपको मिस्टेक भरमार मिलेंगे, काफ़ी मिलेंगे, और उसके वजह से आने वाला मेरी 15-20 मिनट आपका टाइम पास हो जाएगा। इसके लिए स्टेप 1 का कंपलसरी करेक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ 1 by 1। बिफोर आई डू गिव यू द मीनिंग, सबसे बड़ी बात है फॉर्मेट। ओके, सो बिहाइंड मी यू सी अ फॉर्मेट, वेरी मच फिक्स्ड, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली फॉर एट लीस्ट 12 प्रॉब्लम्स टू कम, 12 प्रॉब्लम, 1 डजन प्रॉब्लम खत्म होते होते यही हमारा फॉर्मेट है। ओके, मैं भी स्क्रीन से जाता हूं ताकि ये फॉर्मेट आपको क्लियरली दिखाई दे।
ओके, सो जस्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम द स्क्रीन। नाउ आपके सामने एक फॉर्मेट है जो लेजर का फॉर्मेट है, प्लीज नोट दैट। ये जो फॉर्मेट है पूरा, ये लेजर का फॉर्मेट है, ये लेफ्ट एंड राइट पेज पे है। मतलब ये जो आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिखता है, प्लीज नोट, वापस से आ जाता हूं क्योंकि मुझे आपको इसके बारे में कुछ बताना बहुत बहुत जरूरी है। एक अकाउंट में एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट, ये लेजर है, लेजर। उसमें डेट भी होता है, उसमें JF करके एक कॉलम होता है। डेट ऑब्वियसली इज टू रिकॉर्ड द डेट, और JF को जर्नल फोलियो कहते हैं। बट इन दिस चैप्टर एंड मेनी चैप्टर्स टू कम, ओके, इवन इन फाइनल अकाउंट्स, हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि वो डेट चेंज नहीं होता है, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और JF का कॉलम नॉर्मली प्रैक्टिकली काम आएगा, आपको यहाँ पे सोल्यूशन में काम नहीं आएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ बिफोर आई मूव ऑन अहेड, वेरी क्विकली एक्सप्लेनेशन। ये जो नीचे का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये 2 पेजेस पे है, लेफ्ट राइट, जैसे आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में बनाया, बराबर। फॉर द लास्ट अराउंड 5 लाइन्स, लास्ट 5 लाइन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस प्रॉब्लम द पार्टनर्स नेम इज अप्पू राजा। तो ये मेरे पीछे भी है, अप्पू एंड राजा। लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। लेफ्ट साइड के ऊपर वॉट एवर इज द स्पेस रिमेनिंग, you will prepare realization account, उसके ऊपर in the books of Appu and Raja or whatever are the partners names. Right, बैंक अकाउंट, उसमें रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट का मतलब पैसा आया और पेमेंट का मतलब पैसा गया। कभी कभी ये बैंक अकाउंट कैश अकाउंट बन जाएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टुडे इट इज बैंक अकाउंट। यस, somebody may ask, many may ask, तो ये बीच में हवा क्या है? बैंक अकाउंट आप करीबन 8 लाइन के लिए बनाएंगे, 8 लाइन, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली बीच में अराउंड 5 to 6 लाइन्स तो खाली रह जाएगी, उसको खाली रखो, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा, मेहमान अकाउंट। अभी वो गेस्ट मेहमान अकाउंट क्या होगा वो बताऊंगा मैं आज की आज। इसको ब्लैंक रखो। पार्टनर्स कैपिटल एट द बॉटम 5 लाइन का, लेफ्ट राइट ऑब्वियसली सेम ना। लेफ्ट के ऊपर जो बचा रियलाइजेशन एंड राइट में बैंक अकाउंट फॉर अराउंड 8 लाइन। फिर ये गैप जो भी है जितने भी लाइन का है खाली रखना। प्लीज नोट, दिस इज द लेजर फॉर्मेट। लेजर रियलाइजेशन अकाउंट इज अ लेजर, उसका लेफ्ट में 2 राइट में बाय। बैंक इज अ लेजर, लेफ्ट में 2 राइट में बाय। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ लेजर। इन दिस चैप्टर जर्नल एंट्रीज भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इफ आई शो यू द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ यू रीड द वेरी लास्ट पार्ट, क्या बोला है? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, वी केप्ट इट रेडी। बैंक अकाउंट वो भी बनाया, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना हम लोगों ने। हाँ, उसको कंप्लीट नहीं किया है बट डेफिनेटली उसको रेडी रखा है। So I will be solving 2 problems. So you can keep this ready once and then again on the next 2 pages, left right, repeat करना। पार्टनर्स का नाम चेंज होगा, बाकी पूरा तामझाम सेम रहेगा। You can pause the lecture right now, और जब भी आप इसको एक recorded format में देखते हो, ओके, और ये फॉर्मेट रेडी रख लो, ओके, प्लीज डू दैट। ये फॉर्मेट को आप रेडी करके रख लेना। एंड अप्रोक्सीमेटली फॉर द फर्स्ट अराउंड 12 प्रॉब्लम्स ये फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इनफैक्ट राइट नाउ देयर आर 2 पार्टनर्स, वो 2 का 3 पार्टनर्स भी होना वेरी मच पॉसिबल है। ओके, स्टेप 1 के व्हाट इज दिस स्टेप 1? वेल, उसके अंदर एक लिस्ट दिया है ABCD। लेट मी शो दैट टू यू। फॉर शोइंग दैट टू यू आई हैव टू फर्स्ट शो यू द क्वेश्चन। अगेन दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस के लिए। क्या लिखा है? नॉर्मली क्या लिखा होगा? अप्पू एंड राजा पार्टनर्स इन अ फर्म। एक दुकान में अप्पू एंड राजा वो पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट्स। जस्ट लाइक कि बाबा जब प्रॉफिट होगा जब लॉस होगा हम लोग 3:2 मतलब 3/5 2/5। They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020. उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनकी दुकान को परमानेंटली बंद करना है।
क्यों बंद करना है? रीजंस बहुत होते हैं, कभी कभी रीजन काफी सिंपल होता है कि जब पार्टनरशिप की शुरुआत हुई तो पार्टनरशिप की शुरुआत में ही डिसाइड किया कि हम 2 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 2 साल के लिए। 2 साल खत्म होने के बाद में ये धंधा बंद, ये दुकान बंद, आप आपके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अग्री किया गया था तो उन्होंने बंद कर लिया। ओके, कोई झगड़े की बात नहीं है। नाउ जब दुकान बंद किया, दुकान के अंदर एसेट लाइबिलिटी है, देखो दिया ना, when their balance sheet was as under, तो in every problem they will give you a balance sheet, they will give you asset, stock, plant, car, furniture, data, cash at bank, अलग अलग asset, and they will give you liability, creditor, reserve fund, capital, अप्पू, राजा, etc etc। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले स्टेप 1 ये बैलेंस शीट को आपको रफा दफा करना है, खत्म करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स को यहां से निकालो, ट्रांसफर करो, रिजर्व फंड को निकालो, ट्रांसफर करो, कैपिटल को निकालो, ट्रांसफर करो। सो टुडे आई विल टेल यू एंड शो यू कि सर ट्रांसफर किधर करना है। अच्छा, कौन से ऑप्शंस है आपके पास ट्रांसफर करने के लिए? देखो, जब आप फॉर्मेट देखते हो, एक है रियलाइजेशन अकाउंट, एक मेरे पीछे है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मेरे ऊपर है बैंक अकाउंट। तो कहां ना कहां पे ये एसेट और लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में है, जो क्वेश्चन में है, स्टेप 1 बोलता है आपको इनको ट्रांसफर करना है। बराबर? अगर मैं आपको स्टेप्स दिखा दूं तो वही लिखा था उसके अंदर, एम्प्टी द गिवन बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन। तो मैंने तो वही बोला, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी दिया, उसको ट्रांसफर करो। ABCD, ए ट्रांसफर CRP, CRP का मतलब कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। कहां पे ट्रांसफर करूं? टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे उन्होंने बोला। हियर 2 कैश और बैंक को आप या तो कैश अकाउंट में या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो। ट्रांसफर रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट बहुत जरूरी होने वाला है। ओके, एंड लास्टली इफ पार्टनर हैज गिवन लोन देन प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। नाउ इन टुडेज क्वेश्चन who are the partners? Appu and Raja, बराबर? and whenever you're preparing partners capital account, उसके बाजू में आप 3:2 लिख के रख लो। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है आपको सोचना कैसे है? देखो, हमको एक रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना है, वो आपने बना दिया, एक बैंक अकाउंट ड्रॉ करना है और पार्टनर्स कैपिटल। सो ऊपर एक बैलेंस शीट है, पहले उसको ट्रांसफर करेगी, और नीचे ये क्या है? द कार वॉज सोल्ड 10,720, furniture 6,000, stock 15,300, the debtors realized only 24,500। मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, I'll not speak about it। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स जो पहला स्टेप है उसमें नहीं आते, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप इतना ही ध्यान देना और इतना ही समझना कि ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो जो दिया गया है वो मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूं, ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। ओके, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट्स में होता था यहां पर वो नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। I'll explain to you। क्या एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखता है? रिजर्व फंड। फाइनल अकाउंट्स में आप रिजर्व फंड को, जनरल रिजर्व को कहाँ पे लिखते थे? लाइबिलिटीज। हाँ, तो बराबर है, यहाँ पे भी लाइबिलिटीज है। बट इन दिस चैप्टर डिसोल्यूशन आप ये रिजर्व फंड को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब आप बोलोगे, सबसे पहली बात, रिजर्व फंड का मतलब क्या है? पार्टनर ने जो पैसा जमा करके रखा था, कल का बुरा वक्त अगर आएगा उसके लिए, उसको कहते हैं रिजर्व फंड। डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है? दुकान बंद हो रहा है, बंद। तो कल है ही नहीं, देयर इज नो फ्यूचर फॉर द शॉप। तो वो रिजर्व फंड में पैसा जो है ना, ऊपर देख लो कितना है? 5,000। अरे वो रख के कोई मतलब नहीं है, वो किसका पैसा है? पार्टनर का, अप्पू का, राजा का। वो अप्पू और राजा को आप डिस्ट्रीब्यूट करो। सो आई रिपीट फॉर दोज ऑफ यू हु मे बी कंफ्यूज कि सर व्हाई आर यू डूइंग रिजर्व फंड डिफरेंट इन डिसोल्यूशन एंड डिफरेंट इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स? बिकॉज दे आर टू डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ अ बिजनेस। इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स द बिजनेस कंटिन्यूज, उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न।
मतलब दुकान की गाड़ी चलती है, दुकान बंद नहीं हो रही है, तो एक कल है, बट डिसोल्यूशन में कोई कल नहीं है, आज ही दुकान बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है बराबर, वो थोड़ा अलग रहता है। ओके, फिर से स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है। देखो भाई, आपके पास पहले क्रेडिटर है, आपको ये सोचना है कि ये क्रेडिटर को मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूँ, इंपॉर्टेंट, रिजर्व फंड कहाँ पे ट्रांसफर करूँ, कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर करूँ, स्टॉक, प्लांट, कार, फर्नीचर, डेटर, कैश एट बैंक, क्वेश्चन कहाँ पे ट्रांसफर करूँ। आज का लेक्चर उसी पे बेस्ड है, एक नहीं मैं 2 क्वेश्चन करूँगा, अलग अलग क्वेश्चन, ताकि ये ट्रांसफर का जो मामला है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। बाद में आप 10वां सम करो, 20वां सम करो, कोई भी सम करो, ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या ट्रांसफर करना है। आई होप फॉर्मेट रेडी है। अभी मैं ये ट्रांसफर का काम स्टार्ट करता हूँ। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं, तो बैलेंस शीट के जो नीचे दिया है वो एडजस्टमेंट्स, उसको हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, और उसके बाद के लेक्चर में हम इसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। तो आई रिपीट, प्लीज नोट, आज के लेक्चर में ये दोनों प्रॉब्लम जो मैं कर रहा हूं, मैं इसे इनकम्प्लीट रखूंगा, क्योंकि वो मेरा इंटेंशन है। ओके, हाँ, तो वही प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने हैं और उसके बाद के लेक्चर में उसको खत्म करना है। सो क्या करना है, क्रेडिटर को हम कहाँ पे ट्रांसफर करें। देखिए, क्रेडिटर का अगर आप नजर मारो फॉर्मेट में, बराबर, क्रेडिटर का कोई अकाउंट नहीं है, पार्टनर का अकाउंट है, ऊपर बैंक का अकाउंट है। रियलाइजेशन का मतलब क्या है, ओके, वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। रियलाइजेशन एक ऐसी जगह है, ओके, बड़ा सा गोदाम, जहां पर आपने अलग अलग एसेट्स को जमा किए हैं। फर्नीचर को आपने रखा है, कार को रखा है, डिलीवरी वैन को रखा है, मशीन को रखा है, स्टॉक को रखा है। तो रियलाइजेशन एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज सबको अपना शरण देता है, सबका सहारा, रियलाइजेशन हमारा। तो अगर क्रेडिटर खो गया, किधर जाऊं मैं, अरे रियलाइजेशन में चला गया। फर्नीचर, अरे मेरी बस निकल गई, मेरी गाड़ी निकल गई, टेंशन मत ले, रियलाइजेशन में चला जा। डेटर, अरे सही रास्ता बताओ ना, रियलाइजेशन में चला जा। तो आई रिपीट माई सेल्फ, रियलाइजेशन सबका सहारा, रियलाइजेशन हमारा। क्रेडिटर्स को हम कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, आप रियलाइजेशन में करोगे। अच्छा, 1 मिनट, मतलब देखो, आप लाइबिलिटी की बात कर रहे हो, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जाता है और एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा। प्लीज़ उतना याद रखिए, ये एकदम शुरुआत से कानून आपको पढ़ाए गए हैं, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है और एसेट डेबिट। तो क्रेडिटर जो है 22,900, इसको हमको कहाँ पर लिखना है, अगर आप ध्यान दो तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ओके, क्रेडिट, डेबिट में नहीं, मैं लिख रहा हूं बाय क्रेडिटर, और उसका वैल्यू क्या था, 22,900। आप भी प्लीज लिख लीजिए, बाय सन्ड्री क्रेडिट, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग ट्रांसफर, okay, you are taking the credit and giving the responsibility to whom, realization you keep, now you take care of it। 22,900 क्रेडिट में क्यों लिखा, because it is on the credit side, as simple as that, just like final accounts। ओके, चलो, क्रेडिटर का ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट कौन है ट्रांसफर करने के लिए, रिजर्व फंड 5,000। व्हाट इज रिजर्व फंड, द पार्टनर्स हैव सेव्ड मनी, उन्होंने पैसा बचा के रखा था, किसके लिए, कल के बुरे के लिए, बट कल तो है ही नहीं, दुकान तो बंद हो रहा है। एक काम करो, फिर पार्टनर्स को आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, इक्वल नहीं, उनके रेशो में। उनका रेशो कितना है, 3:2। फर्स्ट लाइन पढ़ लो, 3/5, 2/5। तो जब आप 5,000 को 3/5 और 2/5 में बांटोगे तो आपको मिलेगा 3,000 और 2,000। ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हमने बहुत बार किया है, तो मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। तो रिजर्व फंड हमको कहां पे लिखना है, वेल, मेरे पीछे आप देख लीजिए, हाँ, क्योंकि वो इलाके में आने वाला है ना,
तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके, इस तरफ। सेकेंड लाइन में बाय रिजर्व फंड 3/5 2/5, 5,000 का 3/5 2/5, कितना, 3,000 अप्पू, 2,000 राजा। आई रिपीट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में रिजर्व फंड लाइबिलिटी में था, बट यहाँ पे कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, ओके। So we are distributing it to the partners. Reason being, there is no purpose of keeping money in the reserve fund. कोई मतलब नहीं बनता, आप इसको जिसका है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके। ये भी क्रेडिट में गया, आपने ध्यान दिया होगा, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। अच्छा, मैं यही पोजीशन पे रहता हूँ क्योंकि वो सही होगा। आप अगला पढ़ो, अगला क्या है, अप्पू का कैपिटल 40,000 और राजा का कैपिटल 30,000। अप्पू का 40,000, राजा का 30,000। कैपिटल किसका पैसा है, पार्टनर का, तो आप पार्टनर को दे दो, ओके। पार्टनर को कैसे देते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स में आप लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यू कैन नॉट राइट द वर्ड कैपिटल क्योंकि ये कैपिटल का अकाउंट है ना। आई होप आपको ये नजर आ रहा है, ऊपर लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप दोबारा कैपिटल का वर्ड नहीं लिख सकते, ओके। सो आपको क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अप्पू के कॉलम में कितना, 40,000, राजा के कॉलम में कितना, 30,000। अगेन आई रिपीट, ये क्रेडिट है, ध्यान दीजिए, ये क्रेडिट है। सो क्रेडिटर को क्रेडिट में लिखा, रिजर्व फंड को क्रेडिट में लिखा और कैपिटल को क्रेडिट में लिखा, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी है। अभी हम एसेट साइड की तरफ जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, इतना प्लीज कर लीजिए। हम लोग स्टेप 1 सीख रहे हैं। स्टेप 1 क्या है कि हम लोगों को पूरी बैलेंस शीट को रफा दफा करना है, खाली करना है। हम उसके लिए हर एक एसेट लाइबिलिटी को अलग अलग खाते में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके। चलो हमारी कोशिश को हम जारी रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसेट। नाउ लिस्ट देख लो एसेट की, ओके। पहला स्टॉक है, फिर प्लांट, कार, फर्नीचर, डेटा। अब ये जो 5 एसेट है इनका कोई अकाउंट नहीं है। व्हाट डज दैट मीन, ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। ऊपर कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन। ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर की चीज है। और एकदम अगल ऑपोजिट साइड पे क्या है, बैंक अकाउंट। तो स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं है, प्लांट का कोई अकाउंट नहीं है, फर्नीचर का कोई अकाउंट नहीं है, कार का कोई अकाउंट नहीं है, जिसका कोई नहीं, सबका सहारा रियलाइजेशन हमारा। तो मेरे ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट है, तो उस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम ये सारे एसेट्स को एक एक करके ट्रांसफर करेंगे, जो भी उसका वैल्यू है। आई रिपीट, फर्स्ट प्रॉब्लम है तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, बट जैसे ही हम इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगा, आराम आप थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा। सो एक एक करके जो ये एसेट्स है उसको हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन, क्योंकि उनका अकाउंट तो नहीं है। क्या क्या है, स्टॉक, प्लांट, कार, फर्नीचर, डेटा। कैश एट बैंक का मतलब है बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा, उसका कोई सहारा चाहिए नहीं, बैंक का खुद का खाता है हमारे फॉर्मेट में। तो वो जो ऊपर आपको 5,600 दिखता है वो हम ट्रांसफर करेंगे बैंक के अकाउंट में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके ऊपर के जो 5 एसेट है वो मुझको आप रियलाइजेशन अकाउंट में पहले मैं आपके लिए ट्रांसफर कर देता हूँ, ओके। तो विथ मी, एक मिनट थोड़ा पोजीशन चेंज कर लूँ मैं। डेबिट साइड पे क्लिक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टू स्टॉक 24,300। कोई पूछेगा सर आपने ये अंदर क्यों लिखा, क्योंकि हमको टोटल करना है, वो टोटल को बाहर लिखना है, इसके लिए मैंने ये अंदर लिखा है। आप भी लिख सकते हो। कुछ प्रोफेसर्स कुछ कॉलेजेस में क्या कहते हैं कि 2 कॉलम बनाओ रियलाइजेशन में, जैसे फाइनल अकाउंट्स में था इनर कॉलम और आउटर कॉलम। नो प्रॉब्लम ना, आप वो भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में कोई पंगा नहीं है। अगला टू प्लांट 24,000। अगेन यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस थोड़ा लाइन में लिखना तो ऐड करने में सुविधा होगी। टू कार 10,000। टू फर्नीचर 5,000 एंड एक लास्ट का बाकी था टू सन्ड्री डेटर्स मतलब कस्टमर्स 29,000। अंडरलाइन क्यों, क्योंकि नाउ वी हैव टू ऐड 24,300
24,000, 10,000, 5,000, 29,000 सब ऐड करना है। ऐड करके टोटल बाहर डालना है, कितना? 92,300। व्हाट डिड वी डू? वी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट टू द रियलाइजेशन। ओके, लिटिल बाय लिटिल हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट में और एसेट को डेबिट में। द वेरी लास्ट आइटम, please make sure you're copying faster. The very last item in the question is cash at bank. Why did not I write cash at bank in the realization? कितना है? 5,600, क्योंकि कैश एट बैंक का खुद का अकाउंट है। ऊपर देख लो, बैंक अकाउंट। तो बैंक में जो पैसा है 5,600 ये दिया है, बैंक में लिख देगी, डेबिट साइड पे लिखेगी क्योंकि एसेट है ना। बट वर्डिंग्स क्या है? टू क्या लिखना है? देखो, बैंक में आप टू बैंक दोबारा नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी फर्स्ट लाइन में बैलेंस लिखते हो नॉर्मली आपको ब्रॉट डाउन लिखना है। ओके, 5,600 ऐसे आपको ये बैलेंस बैंक का लिख लेना है। नाउ आई रिपीट माई सेल्फ, हमने अभी क्या सीखा है? हमने स्टेप नंबर 1 सीखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1 में आपने ट्रांसफर करना सीखा है। आपने ट्रांसफर क्या क्या किया है? वेल, लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया क्रेडिट में, एसेट को ट्रांसफर किया डेबिट में। कुछ चीज़ें, नॉट कुछ, काफ़ी चीज़ें रियलाइजेशन में जाती है तो आपने रियलाइजेशन में उसको डाल दिया एक एक करके। जब एक लंबी लिस्ट रहती है तो अंदर लिख लेते हो टोटल करके बाहर। मेरे पीछे आपने कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस लिखा है और रिजर्व फंड ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया, और ऊपर आपने बैंक अकाउंट लिख लिया। प्लीज़ नोट, ये प्रॉब्लम इनकम्प्लीट है। अगली बार जब मिलूंगा मैं थोड़ा इसकी गाड़ी और आगे बढ़ाऊंगा। आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 में आपको स्टेप 1 जो होता है, मतलब एम्प्टी द बैलेंस शीट, वो कैसे करते हैं वो आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, किधर जाना मत, इमीडिएटली मैं आपको क्वेश्चन 2 दिखाता हूँ, उसका फॉर्मेट आप दोबारा रेडी रखिए। ओके, होल्ड ऑन। क्वेश्चन 2 मतलब, ओके, मेरे पीछे आप देख लो, विक्रम एंड बेताल। आपने अगर नाम नहीं सुना है तो सुन लेना चाहिए, अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछ लेना, दे विल नो ये कौन सी कहानी है। विक्रम एंड बेताल वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 2/5। काफ़ी काम आता है रिजर्व को बांटने में, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने में। ऑन 31 मार्च 2020, वही दिन पे दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर दुकान को बंद करना है। इनके पास भी बैलेंस शीट है, इनके पास भी बैलेंस शीट में एसेट एंड लाइबिलिटी है, हाँ, बट ये आपको अभी रेडी रखना है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, ये फॉर्मेट है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम, थोड़ा एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है बता देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ विक्रम एंड बेताल, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, नीचे जो लास्ट का 5 लाइन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का खाता, विक्रम बेताल, डेबिट लेफ्ट पेज पर और राइट पेज पर क्रेडिट। ऊपर बैंक अकाउंट, उसमें रिसिप्ट पेमेंट जैसे पिछली बार बनाया। और आज के इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन 2 में एक अकाउंट एक्स्ट्रा है, विक्रम लोन। विक्रम कौन है? वो तो पार्टनर है। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर कैपिटल तो देता ही देता है, बट अगर पार्टनर ने बिजनेस को कर्जा दिया है, लोन, तो उसके लिए एक वीआईपी अकाउंट बनता है, जो ऊपर बना है। सिंपल 3 लाइन का आप बना के रख सकते हो, डेबिट क्रेडिट विक्रम लोन। अगर पहले वाले सम में था तो उसमें अप्पू एंड राजा, तो अगर अप्पू लोन होता वी वुड हैव प्रिपेयर्ड इट, राजा लोन होता तो वी वुड हैव प्रिपेयर्ड इट। नहीं था, ये प्रॉब्लम में है। कैसे है? चौथा आइटम आपको नजर आएगा, विक्रम लोन 2000। तो विक्रम एक पार्टनर है ये क्वेश्चन में, तो जब भी एक पार्टनर लोन देता है उसके लिए खास अकाउंट बनाया जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं, 3 लाइन का बना दोगे तो समाप्त हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ मैं, फॉर्मेट में आपको क्या क्या रेडी रखना है। आप हमेशा ना फाउंडेशन से शुरुआत करो, तो नीचे से प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:2, क्योंकि उन्होंने दिया है 3/5 2/5। This is around 5 lines. Then realization account in the books of Vikram and Betal.
बैंक अकाउंट अराउंड 8 लाइन का, और आज इस प्रॉब्लम में ही विक्रम लोन डेबिट क्रेडिट 3 लाइन तक चलेगा। ओके हाँ, तो अगर ये सब बना दिया, नहीं बनाया तो पॉज कर लो, बना लो, उसके बाद में कंटिन्यू करना। राइट नाउ तो आई विल कंटिन्यू। नाउ what is there in the balance sheet? See, whatever is there in the balance sheet, ध्यान उस पर रखना, उसके नीचे मत रखना, उसके नीचे ध्यान मत रखना, क्योंकि वो मैं अगली बार कंटिन्यू करूंगा। द क्वेश्चन एट द एंड सेज प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रेडी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है, बैंक अकाउंट। विक्रम लोन नहीं पूछा, तो टेक्निकली वो रफ वर्क है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज़रूरी है। तो आई रिपीट, विक्रम लोन नहीं पूछा, बट वो रफ वर्क है, बट वो ज़रूरी है, तो रेडी ज़रूर रखना। ओके, राइट नाउ हम स्टेप 1 कर रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, पूरा बैलेंस शीट को रफा दफा करो। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या है देखो ना, पहले विक्रम कैपिटल है 20,000, बेताल कैपिटल है 18,000। कैपिटल मतलब पार्टनर का पैसा, तो पार्टनर का पैसा आपको पार्टनर को देना पड़ेगा। ओके, कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। तो प्लीज़ नोट, क्रेडिट साइड पे, नॉट बिहाइंड मी, उस तरफ आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट लाइन में हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 20,000 विक्रम का, 18,000 बेताल का लिख लो। कैपिटल के अंदर दोबारा कैपिटल आप नहीं लिख सकते, ऊपर जो बैंक है उसके अंदर दोबारा बैंक नहीं लिख सकते, विक्रम लोन जो है उसके अंदर विक्रम लोन आप नहीं लिख सकते हो। ओके, सिंपल है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सम में बता दिया, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर मोर प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट देयर इज जनरल रिजर्व। रिजर्व में तो पार्टनर का पैसा है 5,000, थोड़ा सा विक्रम, थोड़ा सा बेताल का पैसा। ओके, थोड़ा थोड़ा मतलब 3/5 to 5th। 5,000 को अगर 3/5 to 5th करे, पहले सम की तरह ही 3,000 और 2,000 आएगा। तो पार्टनर को उनका पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करो, दो, विक्रम तुम्हारे पैसे रखो, बेताल तुम्हारे पैसे रखो, बाय जनरल रिजर्व 3/5 और 2/5, 3,000 2,000। आई रिपीट, हाँ, जो पार्टनर का है हम पार्टनर को दे रहे, भैया ये तुम्हारा पैसा है, कैपिटल रखो, ये तुम्हारा रिजर्व है, रखो। क्यों, दुकान तो बंद हो रही है ना, तो जो तुम्हारा है तुम रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इज विक्रम लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन में और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी होगा। विक्रम तो पार्टनर है, पार्टनर ने लोन दिया है, तो बिजनेस की तो हेल्प डेफिनेटली हो गई ना। हाँ, तो इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनता है। दूसरे किसी का भी लोन रहेगा तो स्पेशल अकाउंट नहीं बनेगा, ओनली विक्रम का अगर लोन रहेगा तो ही स्पेशल अकाउंट बनेगा। प्लीज वो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so on the Vikram loan credit side, by balance brought down 2,000. Why? Because we cannot write by Vikram loan, दोबारा तो आप लिख नहीं सकते हो ना। हाँ, तो प्लीज वो आप याद रखना, by balance brought down। अगला कौन था, आई थिंक क्रेडिटर्स, बट क्रेडिटर का तो कोई अकाउंट नहीं होता, सबका सहारा रियलाइजेशन हमारा। रियलाइजेशन में आप क्रेडिटर को लिख लो, किस तरफ, क्रेडिट साइड पे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर। कभी कभी क्रेडिटर देते तो बाय क्रेडिटर्स लिख लेना, 10,000। आपने अभी तक जो लिखा सारा कुछ क्रेडिट में लिखा। ओके, वेदर इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का, बाय जनरल रिजर्व, ऊपर विक्रम का लोन, या मेरे ऊपर बाय क्रेडिटर, सब क्रेडिट में गया। अभी डेबिट की चीजें डेबिट में जाएगी। अगेन थोड़ा मैं फास्ट हो गया हूं, but then it is a repetition of what I did in question number 1. So asset में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करो, स्टॉक ट्रांसफर करो, सन्ड्री डेटर्स ट्रांसफर करो, बट कहाँ पे, उनका तो कोई अकाउंट ही नहीं है, रियलाइजेशन। लास्ट में बैंक अकाउंट, हाँ बैंक का अकाउंट है, दैट मनी विल ट्रांसफर टू द बैंक। सो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, वट एवर द वैल्यू इज गिवन, राइट अबाउ मी ऑन द डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा था वहाँ पर, 15,000। ओके, अगर आप लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप पीएम मत लिखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं, थोड़ा जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, बाकी का जितना फिट हो सके उतना ज़रूर लिख लेना। ओके, प्लीज़ नोट, नोटबुक में आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो, नोटबुक में, बट एग्जामिनेशन में
जो आपको आंसर पेपर मिलता है उसमें मार्जिन यूज़ करना मना है, सख्त मना है। तो एग्जामिनेशन का पेपर थोड़ा बड़ा रहता है, तो मार्जिन छोड़ने के बाद जो पेपर पेज बच जाता है उसमें आराम से ये अकाउंट बन जाएगा। राइट नाउ नोटबुक में आप मार्जिन यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन में आपको वो अलाउड नहीं है, वो मैं याद दिला दूंगा आगे जाके भी। ओके, अगला टू स्टॉक मेरे ऊपर 15,000, टू सन्ड्री डेटर्स मेरे ऊपर 22,000। ये टोटल करना है, टोटल को बाहर डालना है, कितना 52,000 डेबिट में लिखा, प्लीज नोट डेबिट में लिखा। उसके बाद बैंक में 3,000 है, अभी बैंक का अमाउंट आप बैंक के डेबिट में लिख लीजिए, बट टू बैंक मत लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 3,000। आई रिपीट, सिंपल। आई अंडरस्टैंड द लेक्चर वॉज लॉन्ग बट इट इज द फर्स्ट लेक्चर, सो आई हैड टू इन डिटेल एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट आर वी डूइंग। हम लोग बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं, उसमें एसेट लाइबिलिटी है, बट जब उसको खाली करेंगे जिसकी जो जगह है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र होगा। तो कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस करके जो होता है वो पार्टनर का है, तो हम पार्टनर को देते हैं। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो ऊपर बैंक को देते हैं। पार्टनर का लोन रहेगा, उसका स्पेशल अकाउंट बनता है। बाकी बचा कुचा स्टॉक, मशीनरी, क्रेडिटर, बैंक लोन, ये बचा कुचा सारा चीज़ जो मेरे ऊपर है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाता है। आई होप आज का ये आपको पार्ट समझा। अगले 2 लेक्चर्स में तो मैं रिपीट करूंगा ही करूंगा, थोड़े जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा, हाँ, बट उसके आने वाले में भी 10 प्रॉब्लम में मैं ये 10 बार आपको पढ़ाऊंगा, तो टेंशन ना लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेंशन का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। जैसे ही प्रैक्टिस हम ज़्यादा करें, 2, 3, 4, 5, 10 बार इसको रिपीट करें, आप इसमें जीनियस हो जाओगे। उसके बारे में चिंता बिल्कुल आप ना करें। जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा, यही 2 प्रॉब्लम्स, यही 2 सॉल्यूशंस को हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करके। उसका जो टेक्निक है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बता दूंगा। आई होप जितना अभी तक हमने बनाया उतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और दोस्तों तक ये चैप्टर के बारे में खास करके और ये चैनल के बारे में बहुत खास करके आप जानकारी पहुंचा दीजिए, सो दैट अदर्स ऑल्सो नो कि ये चैनल पे क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। Do take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. Till the time we meet again, good day to all of you. God bless. Tata.